پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اپنی بیوی سے بچے کی فرمائش کر دی۔ یعنی شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بچہ چاہیے۔ پھر بیوی نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹے کا نام ساجد اور بہو کا نام شبانہ تھا۔ دوستو، ہم نے پہچان چھپانے کے لیے یہ نام بدل دیے ہیں۔ ساجد اور شبانہ کی شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ایک دن شبانہ اور ساجد کی امی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک ساجد کی امی شبانہ سے بولی، بیٹی تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے ہمیں پوتے اور پوتی کا منہ نہیں دکھایا، آخر بچے کب ہوں گے؟ آج جب تمہارے ساتھ ہسپتال گئی تھی تو سوچا کہ شاید کوئی خوشخبری ہوگی، پر کیا تھا؟ وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ۔ تو شبانہ بولی، امی خدا کے یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ مگر شبانہ کی ساس بولی، تمہارے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی تھی وہ سب 2-2 3-3 بچوں کی ماں بن گئی ہے، تم ابھی تک ایک بچی کی ماں نہیں بن سکی۔ شبانہ بولی، امی اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کی آپ کو دادی بنا دیتی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے میں ساجد بولا، شبانہ جاؤ تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ شبانہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ شبانہ کے جانے کے بعد ساجد کی امی بولی، بیٹا اگر تمہاری بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو تم ہی کچھ کرو۔ ساجد بولا، امی آخر بچہ تو شبانہ ہی پیدا کرے گی، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر ساجد کی امی بولی، تم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ تم کم سے کم دوسری شادی تو کر سکتے ہو، بچے تو پیدا ہو جائیں گے۔ تو ساجد بولا، امی میں تو شادی شدہ ہوں، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ تو ساجد کی امی بولی، میری ایک دوست ہے، ان کی بیٹی کا نام نیہا ہے، کم عمر کی لڑکی ہے، ابھی کنواری ہے، تیری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ تو شبانہ کو طلاق دے دے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ، تیرا اپنا اتنا اچھا خاصا کاروبار ہے، تو بہت آسانیوں سے 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ شبانہ جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سن لی۔ جب ساجد کمرے میں آیا تو شبانہ رونے لگی۔ ساجد نے رونے کی وجہ پوچھی۔ شبانہ بولی، میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سن لی، آپ مجھے چھوڑ کر دوسری عورت کو گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ساجد بولا، ایسا نہیں ہے شبانہ، وہ تو میری امی کا حکم ہے اور میں اپنی امی کا حکم نہیں ٹال سکتا، اور تمہیں بھی پتا ہے ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بچے کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، میں اپنی امی کو ایک پوتا یا پوتی تک نہیں دے سکا۔ اور سنو شبانہ، اس گھر میں تمہارا جو مقام ہے تمہارا وہی مقام رہے گا۔ اگلے دن ساجد کی امی اپنی سہیلی کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئی۔ جب ساجد کی امی نے اپنی سہیلی سے ساجد کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو نیہا کی امی بولی، مگر آپ کا بیٹا تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس پر ساجد کی امی بولی، ہاں ہے تو، لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ساجد کی بیوی شبانہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے وارث نہیں دینا ہے تو کیا فائدہ ایسی بیوی کا؟ ساجد کی امی نے اپنی سہیلی کو راضی کر لیا اور پھر 2 دن کے بعد ساجد اور نیہا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے ساجد نیہا کو اپنے گھر لے آیا۔ ساجد جب اپنی دوسری بیوی یعنی نیہا کے کمرے میں گھسا تو اسے کہنے لگا کہ نیہا اب تم میری شریک حیات بن چکی ہو، میں پوری کوشش کروں گا جو پیار، عزت اور جو مقام میں نے اپنی پہلی بیوی یعنی شبانہ کو دیا میں تم کو بھی وہی دے سکوں۔ پھر ساجد نے نیہا کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا تو نیہا بولی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ساجد بولا، مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس گھر، گاڑی، پیسہ سب کچھ ہے، یہاں تک کہ بیوی پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک چیز کی بہت کمی ہے اور اس کے بغیر یہ سب چیزیں بے معنی لگتی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلے، بس مجھے تم سے یہی چاہیے اور میری امی کی بھی یہی خواہش ہے۔
तो नेहा बोले, इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन शबाना ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। शबाना के सास शबाना से बोले, शबाना क्या अभी तक साजिद और नेहा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो शबाना बोले, नहीं अम्मी। उसके थोड़ी देर के बाद साजिद अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। साजिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको भी खाना है? आपके लिए भी हलवा पूड़ी ले आऊं? साजिद की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। साजिद ने जब शबाना से हलवा पूड़ी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी शबाना ने तैयार किया। सब खाना खा रहे थे और शबाना उनके पास खड़ी थी। तो नेहा बोले, तुम क्यों इस तरह सर पर खड़ी हो? बैठ जाओ और खाना खा लो। उस पर शबाना बोले, मैं सबको खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती हूँ। उस पर नेहा बोले, तुम क्या बूढ़ियों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो? कुछ दिनों के बाद छोटी छोटी बातों पर नेहा और शबाना की तू मैं होने लगी। तो साजिद ने उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। तो नेहा मान गई, लेकिन शबाना बोली, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती हूँ। जब नेहा और साजिद बाहर घूमने चले गए तो नेहा बोले, आपने शबाना को साथ आने के लिए क्यों कहा? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो साजिद बोला, वो मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। साजिद और नेहा की शादी को भी 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठे सोच रही थी कि 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हो सकी, कहीं साजिद मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है। उसने सोचा, क्यों ना मैं साजिद को ऐसा महसूस कराऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से साजिद और मेरी सास का पूरा ध्यान मेरे पर हो जाएगा। नेहा बार बार ड्रामा करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार नेहा ने पेट में दर्द का ड्रामा किया तो साजिद और उसकी अम्मी ने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया, उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिया और चले गए। उसी रात नेहा ने पेट दर्द का ड्रामा किया था तो उसके सास और उसके शौहर उसको फौरन अस्पताल लेकर जाने लगे। इतने में शबाना के चीखने की आवाज आने लगी। साजिद बोला, अम्मी आप नेहा को संभालो, मैं शबाना को देखता हूँ। तो साजिद की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर पर पड़ी है, वो खुद दवा ले लेगी, तुम नेहा को संभालो। जब साजिदा और उसकी अम्मी जब नेहा को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी ना था। जब घर वापस आई अपने कमरे में चली गई तो साजिद बोला, अम्मी मैं शबाना को देखकर आता हूँ। साजिद जब शबाना के कमरे में गया, साजिद ने कहा, शबाना अब तबीयत कैसी है? तो शबाना बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे तकलीफ में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो साजिद बोला, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवाई तो घर पर मौजूद है, ले लेती। तो शबाना बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो पूरी तरह हट गई है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो साजिद बोला, मैं क्या करता, अगर उसे अस्पताल लेकर ना जाता। तो शबाना बोले, हाँ आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो साजिद बोला, मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। साजिद यह कहकर शबाना के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू नेहा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई, ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं और अब उसे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। साजिद की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे बहू शबाना की बद्दुआ लग गई, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये दिन दिखा दिया। अभी साजिद की अम्मी डॉक्टर से बातें कर रही थी कि अचानक शबाना के चीखने की आवाज सुनाई दी।
तो लेडी डॉक्टर बोले, ये कौन चीख रहा है? साजिद बोला, ये शबाना है। तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप कहें तो मैं एक बार शबाना का चेकअप कर लूं? साजिद ने कहा, जी हाँ जरूर। साजिद की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है कि शबाना भी नेहा की तरह ड्रामा कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर ने शबाना का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। साजिद की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर ने कहा, आप दादी बनने वाली है। आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है। उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी, क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो साजिद की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। और फिर साजिद अपनी बीवी शबाना के कमरे में गया, उसे मुबारकबाद दी और फिर साजिद थोड़ी देर शबाना के पास बैठा और फिर बोला, अच्छा शबाना, मैं नेहा को देखकर आता हूँ। शबाना बोली, जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी आपकी जरूरत है। जब साजिद नेहा के कमरे में गया, नेहा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। साजिद बोला, क्या नेहा, तुम कहीं जा रही हो? नेहा ने कहा, जी हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने शबाना के साथ बहुत गलत सलूक किया है, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है, शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है और मैंने आपका और आपकी अम्मी का ख्वाहिशों पर भी पानी फेर दिया है। इतने में शबाना भी नेहा के कमरे में आ गई। नेहा ने शबाना से माफी मांगी। फिर नेहा बोली, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं, अब मुझे चले जाना चाहिए। शबाना बोली, नेहा, मुझे भी तो बांझ कहा गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सूनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमा दे और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा बच्चा होगा और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। हमारे बच्चों को 2 माओं का प्यार मिलेगा। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गया। वो शबाना के गले लगकर रोने लगी। फिर शबाना को अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और अब नेहा शबाना के बेटे को अपना बेटा समझती है और शबाना को अपनी बड़ी बहन समझती है और साजिद अपने दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, बच्चे की चाहत ने साजिद को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साजिद की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना ही नुकसान कर लिया। जिस शबाना को वो देखना तक नहीं चाहती थी, उसी शबाना ने नेहा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।